Assalamualaikum students. Today we are going to solve chapter 3 exercise 3.5 question number 6, the last question of this exercise. That is very important questions. So we have to solve this question number 6 like question number 5. After solving of this question number 6, you can also able to easily solve question number 5, or after solution of the question number 5 you can easily solve it question number 6. So first of all, it is given that it does not possess the unique solution. So it means that we have to write in the form of matrix and find the value of lambda by putting its determinant equal to 0. So the first column is the coefficient of x, like here is a 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, right? After that 4, 1, 2, 4, 1, 2, the coefficient of x2, second column. The third column is the coefficient of x3, lambda minus 2, lambda minus 2 and minus 2. The variables which we are involving here, x3, x1. So first you will write x1, then x2, then x3. After equal sign 2, 11 and 16, we will write the matrix C. Normally we are writing this matrix like A. We assume at A and it's assumed as X, and this matrix assume as B. So here first of all we have to find the value of lambda, put A determinant is equal to 0. So when you are writing A determinant is equal to 0, so the notation of the matrix is this determinant, right? So we have to find its determinant equal to 0 by putting its value first 1, 2, 3, 1, 2 and 3, 4, 1, 2, 4, 1 and 2. The third column lambda minus 2, lambda minus 2 and minus 2. The first step is that we have to find the value of lambda by putting its determinant equal to 0. As I told you before, how to find determinant, which we have already solved in exercise 3.3 and 3.4 and 3.5 also. So first we have to use the first row, write the 1 remaining same, then the sign of the second element change 4, then again you will write like this, and then plus lambda by this, and its determinant equal to 0. Why we are putting determinant equal to 0? Because he said that does not possess the unique solution. It means that are not unique solution or does not trivial solution. So meaning same that its determinant equal to 0. So when you are filling the first determinant, so keep one thing in your mind, because the first row element you have already write that one 1, 4 and lambda. The second element sign change. I will explain again that I repeat that one in the inverse method, that how to change the sign. So after that, when you are filling the first determinant, skip the first column, because according to rule, when you are writing this, so this row and this column will cancel. So first column you cancel. What is remaining? That 1, 2, minus 2, minus 2. When you are filling that second determinant, skip the second column. Okay, remove second column, the remaining you have to write. So what is that? 2, 3 and minus 2, minus 2. So when you will write in the last determinant, so remove the third column. थर्ड कॉलम को स्किप करें, मिस करें और बाकी को लिखें आप 2, 3 and 1, 2 and then solve. According to rule 1, same. First we have to multiply by the main diagonal, right? And the sign between them is the negative sign. Then multiply by the second diagonal. Minus 2 into 1, minus 2. This negative sign of the formula. So minus 2 into 2, minus 4. Then minus 4 again. The formula sign is negative. First main diagonal. 2 into minus 2, minus 4. Then minus 6. Again we will write lambda. What should write it here? Good. 2 into 2, 4, and here 3.
Simplify more, because if you are feeling confusion, then you have to put directly in the calculator this full bracket, then it will give you the direct answer. Like minus minus plus 4 minus 2. 2 2 1s are 2. Minus plus 6 minus 4. 2. 2 into minus 4 minus 8. Good. And plus lambda here 1. So lambda 1s are lambda, no issue. 2 minus 8 minus 6. Plus lambda 1s are lambda. So what is the value of lambda we will get? That is equal to 6. The first step we have to solve. Same procedure you have to apply in the question number 5. But in question number 5, that is equal to 0. All terms are equal to 0. So here there is some number. So here we will again use the same method like equation number 1, equation number 2 and equation number 3. We will put the value of lambda in equation number 1 and solve equation 1 and 2. To find solve equation 1 and 2 means that we have to find the value of x1 and x2 in the form of x3. Then putting the both values in equation 3 and satisfy the equation 3, that is our final answer. Okay, when we are putting the value of lambda 6 in equation 1, so what is the equation number 1? It's already same. Put the value of lambda equation number 1. It will become x1 plus 4x2 and plus 6x3 is equal to 2. लैम्डा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, कहां पे आके, यहां पे आके लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दी है. सेकंड इक्वेशन सेम रहेगी, 2x1 प्लस x2 प्लस x2 and minus 2x3 is equal to 11. We have to solve these two equations and we will use the method simultaneous method. Simultaneous method बेटा क्या होता है? We have to make the equate the coefficient of x1 or x2. अगर मैं x2 के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना चाहता हूं तो इधर इसका कोएफिशिएंट है 4, तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x2 आ जाएगा, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं. इफ आई वांट टू कैंसिल x2, इफ आई वांट टू कैंसिल x1, तो इस इक्वेशन के साथ 2 है, ये आपके पास सिंगल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास 2x1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी. तो क्या करें, किसी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें मुझे बताएं, उसी तरह से हम कर लेते हैं. चलें, अगर आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर देते इक्वेशन 1 को 2 के साथ और इसके नीचे लिखता हूं, फिर आपके पास सॉल्व करता हूं. इस इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे लिख भी देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन, आपके पास इसी को वो 1 है क्योंकि इसी का नाम वही रखेंगे हम 1, और 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, इक्वेशन 1 by 2. जब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज 2x1 plus 4 2s are 8x2 plus 6 2s are 12x3 is equal to 2 2s are 4. ये इक्वेशन हमारे पास आगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, क्योंकि दोनों का सेम कोएफिशिएंट है, सेम साइन है, तो हमारे पास डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता. सो व्हाट वी हैव टू डू दैट, चेंज द साइन ऑफ ऑल नंबर्स, मीन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. अगर ऑलरेडी अपोजिट साइन होती तो फिर हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते, लेकिन हमारे पास अपोजिट साइन नहीं है, जिसकी वजह से ये हो जाएगा कैंसिल. सो x2 एंड minus 8x2, व्हाट इज द आंसर? गुड, दैट इज minus 7x2. देन minus 2x3, इस साइन को निगलेक्ट कर देंगे तो minus 12x3, व्हाट इज द आंसर? minus 14x3 is equal to 7. We have to find the value of x2. So minus 7 is creating problem for us. क्या करें अब इसको? Good, divide by minus 7 कर दें, full divide by minus 7, तो क्या आंसर आ जाएगा, x2, यहां से साइन भी चेंज हो जाएगी, प्लस 2x3 is equal to minus 1. ठीक है, हमें x2 की वैल्यू चाहिए, तो ये 2x3 क्या होगा, उस तरफ चला जाएगा.
तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आपके पास -2x3 एंड -1, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। और ये इक्वेशन 4 उठा के 1 या 2 किसी में भी पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे x1 की। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करने को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इस मेथड को हम कहते हैं साइमल्टेनियस मेथड और इक्वेटिंग मेथड। तो अब हम किस में पुट कर दें, x1 की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इसी के अंदर। तो x1 आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 4x2 को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू के साथ, तो क्या आ जाएगी, -2x3 -1 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आंसर हमारे पास आता है, x1 माइनस 8x3 -4 एंड प्लस 6x3 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, -4 को भी उठा के उस तरफ ले जाएंगे, +4 हो जाएगा, -8 एंड प्लस 6x3 क्या बच जाएगा, x1 इज इक्वल टू -2x3 और ये हमारे पास हो गया 2 + 4। -2x3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। गुड, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, x1 इज इक्वल टू आपके पास 2x3 + 6, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x1 की। अब ये x1 और x2 की वैल्यू दोनों उठा के हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर ये थर्ड इक्वेशन को करते हैं सेटिस्फाई तो फिर तो है हम ठीक। अगर ये थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, इट मींस दैट वी आर डूइंग सम मिस्टेक, हमारे पास कोई ना कोई गलती हुई है, कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से उसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। मेरे पास दो जगह हैं, मैं इस जगह को यूज करना चाहता हूं। अगर मैं इस जगह को यूज करके यहाँ पे आपके पास सॉल्व कर दूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास वो जगह थोड़ी कम पड़ सकती है। पुट द वैल्यू ऑफ x2 एंड x3, या इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 इसको नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 इसको नाम दिया। अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x2 एंड x1 एंड x2 इन इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ x1 and x2 in equation 3। इक्वेशन 3 भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं, पुट इक्वेशन 4 and 5 in equation 3। 3x1 की जगह हम क्या लिखेंगे, गुड, x1 नहीं लिखेंगे, x1 की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 2x3 + 6। फिर उसके बाद क्या है, +2x2, तो इसके बाद +2x2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, -2x3 एंड -1। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, -2x3। उसके बाद है बेटा जी ये -2x3 इज इक्वल टू 16। अब हमने क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट को सॉल्व करना है, उसका आंसर 16 निकालना है। अगर 16 हमारे पास आंसर आता है तो फिर हमारा आंसर सही है। तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, 3 2s आर क्या आ जाएगा, 6x3 + 6 3s आर 18। ओपन दिस ब्रैकेट, व्हाट इज आंसर, -4x3 एंड प्लस माइनस -2 1s आर 2, और ये जो बाहर ठहरा हुआ था -2x3 वैसे के वैसे। मैं यहाँ पे 16 को टच नहीं कर रहा क्योंकि मुझे 16 को प्रूव करके देना है। देखिए बेटा, अब आपके पास ये है +6x3 -4 एंड -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैं अगर इसको लिख देता हूं 6x3 और आपके पास ये हो गया -6x3, ये आपके पास है +18 और ये -2, ये 6x3 से कैंसल, 18 - 2 क्या आंसर आया, 16। और हमें चाहिए क्या था, ये 16 चाहिए था कि नहीं चाहिए था। इट मीन्स दैट कि जो हमने
इक्वेशन नंबर 4 और 5 से वैल्यू निकाली थी x1 और x2 की, वो हमारे पास बिल्कुल ठीक निकली। इसी वजह से हमारे पास इक्वेशन 3 को हम सेटिस्फाई करा सके, वरना इक्वेशन 3 हमारे पास गलत हो जाती। अब हमारे पास फाइनल आंसर, सिर्फ एक लाइन और आप ऐड करूंगा, जिसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इस चीज को आप एडजस्ट कीजिएगा। अब हम क्या कहेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे लेट x3 इज इक्वल टू t, क्योंकि x3 को इज इक्वल टू x3 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये तो x2 की वैल्यू भी x3 की फॉर्म में आ गई, x1 की वैल्यू x3 की फॉर्म में आ गई। अब x3 को भी x3 लिखेंगे तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, इसलिए लेट x3 इज इक्वल टू t। तो x1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2t प्लस 6, और आपके पास x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 2t minus 1, that is our final solution. Hope all of you clear. दोबारा स्टेप्स बता देता हूं, शॉर्ट जल्दी जल्दी। आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। 6 आ गई, उस लैम्डा की वैल्यू को जाके यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। जब इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे आके हम पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू को, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। फिर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 के अंदर लैम्डा नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट वैल्यू दी गई है। 5 में लैम्डा दिया हुआ लेकिन इक्वल टू 0 है सारे, इधर इक्वल टू 0 नहीं है, ये फर्क है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, उसमें से x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू उठा के थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, उसको सेटिस्फाई करें, देन x3 इज इक्वल टू t लेट करें, दैट इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। होप ऑल ऑफ यू क्लियर। ये आपके पास सेक्शन सी के अंदर सवाल अक्सर पेपर में आ जाता रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।